سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا سرگودھا سیال شریف میں سیاسی میدان بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں مطالبات منوانے کے لیے 27 فروری کو مزار قائد سے شہر اقتدار اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سیال شریف میں پی پی رہنما صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی کی دعوت پر جیالوں نے میدان سجایا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، انفارمیشن سیکریٹری شہزاد چیمہ، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سینئر نائب صدر رانا فاروق سعید، سمینہ خالد گھرکی سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی سرگودھا کے ڈویژنل صدر تسنیم صدیقی، پی وائی او پنجاب کے صدر محسن ملہی، سابق ایم پی اے رائے شاہ جہان کھرل، پی 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 فیصل آباد کے ضلعی صدر چودھری اعجاز، فیصل آباد ڈویژن کے نائب صدر اشفاق احمد بھی جلسے میں شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوامی مفادات کے لیے 27 فروری کو لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قوم ساتھ دے تاکہ کٹھ پتلی حکومت کو گھر بھیجا جا سکے۔ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر تو دور کی بات، غریب کے سر سے چھت چھن چکی ہے۔ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا۔ کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران جیالے پرجوش دکھائی دیے، پنڈال جیے بھٹو اور حکومت مخالف نعروں سے گونجتا رہا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ہمراہ عمیر عظمت، سیال شریف، روہی، سرگودھا۔ ملتان میں تحریک انصاف خواتین ونگ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیم پر ساتھ دیا، اسی طرح جنوبی پنجاب پر ساتھ دیں تو صوبہ بننے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ملتان میں تحریک انصاف خواتین ونگ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کی مشاورت سے خط لکھا تھا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سنجیدہ ہے تو ساتھ دے، نئے صوبے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو انتظامی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیے، جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور جنوبی پنجاب کے 3.5 کروڑ عوام سے کوئی ناٹک نہیں رچانا چاہتے تو آئیے ہمارا ساتھ دیں، آئیے مل کر یہ بل پاس کریں اور آپ یہ سیرا اپنے سر لیجیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیم پر ساتھ دیا، اسی طرح جنوبی پنجاب پر بھی ساتھ دیں تو صوبہ بننا مشکل نہیں ہوگا۔ 5 گھنٹے کا سفر ہے ملتان اسلام آباد کا، میں روز کرتا ہوں، اور اگر ان کو چاہیے تو آج رات کو 10 بجے میں روانہ ہوں گا، وہ میرے ساتھ آئیں، میں انشاءاللہ 5 گھنٹے میں ان کو پورا اسلام آباد پہنچا دوں گا، اپنی گاڑی میں لے جاؤں گا، فری آف کاسٹ، کوئی پیٹرول کا خرچہ، کوئی بوجھ، کچھ نہیں آئے گا، میری گاڑی ہوگی، گیلانی صاحب ہوں گے، میں میزبان ہوں گا، چلے میرے ساتھ، 5 گھنٹے میں انشاءاللہ سینٹ کی دہلیز پر پہنچانا میرا فرض ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سینٹ اسٹیٹ بینک ترمیم میں یوسف رضا گیلانی صبح نماز کے وقت اسلام آباد کے لیے جاتے تو پہنچ سکتے تھے۔ اسلام آباد کا سفر 5 گھنٹوں کا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد اپنے ساتھ جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی کو 5 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچا دوں گا، مگر اس سب کے باوجود وہ یوسف رضا گیلانی کے شکر گزار ہیں۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ملتان میں تحریک انصاف کے ضلعی اور سٹی صدر کا چناؤ نہیں ہو سکا ہے۔ ملتان کے پارٹی عہدے تاحال خالی، ضلع اور سٹی صدر کا چناؤ بھی نہ ہو سکا۔ ایسے میں مقامی رہنما مرکزی رہنماؤں پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ تحریک انصاف ملتان کے سابق سینئر نائب صدر سجاد سیال کا روئی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن قریب ہیں، مگر پارٹی عہدے خالی ہیں، بغیر تنظیم کے الیکشن لڑنا ممکن نہیں۔ میری گزارش ہے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم صاحب سے، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے، یہ 3 مہینے گزر چکے ہیں پارٹی کو تحلیل کیے ہوئے، جو اپنا ورکروں کو چھوٹی موٹی عزت دی ہے انہوں نے اب بحال کریں، اور یہ تنصیب سازی نو کریں، اور کہ آگے آ رہے ہیں بلدیات کے الیکشن،
और उस पर अगर इन्होंने पहले इसको पार्टी को बहाल ना किया तो उस पर असर पड़ेगा। सजाद सियाल का कहना था कि अरसा से पार्टी ओहदे खाली हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारी, मगर पार्टी ओहदे पंजाब में भी खत्म कर दिए गए। जो ओहदेदारान थे उनको हटा दिया गया है। ये जिम्मेवारी थी जो उन पे जो मकसद वो पार्टी इलेक्शन हारी है केपी में, उसकी जिम्मेवारी वहाँ की हुकूमत वज़रा की थी और उन्होंने उस बहाना बनाकर पूरे पाकिस्तान की पार्टी पंजाब की तहलील कर दी है। सजाद सियाल का मजीद कहना था कि बगैर पार्टी ओहदों के कैसे बल्दियाती इलेक्शन में उतरेंगे। पार्टी कारकुन मायूस हो रहा है। जल्द तंजीम साजी मुकम्मल ना हुई तो पार्टी को शदीद नुकसान होगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी की हल्के की अवाम से मुलाकात हुई है। कहते हैं पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। अवामी हुकूमती पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने हल्के की अवाम से मुलाकात की और कारकुनों के मसाइल सुने। दोनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो या नाअहली ज़िक्रा टाउन के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। ज़िक्रा टाउन का फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद है। अब हुकूमत के अवाम को साफ पानी की फराहमी के दावे छू मंतर। ज़किया टाउन का फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस एक अरसे से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत खंडर बनती जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बाइस इलाका मकीन साफ पानी से महरूम। इलाका का कहना था कि कई दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल बंद पड़ा है। साफ पानी न मिलने की वजह से वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए ना, इस टाइम ये ओपन होता है, इस टाइम ये बंद होता है। कोई शेड्यूल आपके सामने नजर नहीं आएगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ना आपकी अटेंडेंट है। एक स्पेसिफिक पर्सन है यहाँ पे, किसी के पास चाबी वगैरह है, वो आते हैं अपने घर का पानी भर के चले जाते हैं, अदरवाइज ये मोस्टली बंद ही रहता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल बनाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर तामीराती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। हुकूमत के जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाने के दावे ठुस हो गए। मुल्तान में नवाबपुर रोड का तामीराती काम 2 साल बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। इलाका मकीन 2 साल से तामीर होती सड़क के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। नवाबपुर रोड पर सेवरेज लाइन बिछाने का काम 2 साल पहले शुरू किया गया था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरियों का इस सड़क से गुजरना महाल हो चुका। मिट्टियाँ खा खा के दुकानदार बीमार थे, नजले लगे पैन, खांसी लगे, गले खराब थे पैन, इन्हें मिट्टी कारा लगने, ट्रक लगने, जेड से लगे मिट्टी ओडियां, उन्होंने बड़ा मसला बना पिया सारे वास्ते। नवाबपुर रोड की खुदाई के बाद एक बार फिर काम रोक दिया गया। सड़क की तामीर का काम मुकम्मल ना होने की वजह से इलाके में कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। इलाका मकीन कहते हैं हुकूमत तरक्याती काम करने की बजाय शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रही है। खड्डे मार के इन्होंने जो है ना चले गए हैं। बंदा जो है ना, इंसान का इनका कोई एहसास ही नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से एहसास है। गवर्नमेंट की नाकामी है जनाब, यहाँ खाने के लगे हुए हैं सारे, ये खाएंगे तो फिर बनाएंगे ना। अब हमारा रोड जो है एमडीए से बनना था, वो भी पैसे हैं, वो भी उधर रुक गए। नवाबपुर रोड का तामीराती काम मुकम्मल ना होने से इलाके में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे बीमारियां भी फैलने लगी हैं। हुकूमती नाअहली या फिर इंतजामिया की बेहिसी। मुल्तान का सबसे बड़ा मंसूबा नवाबपुर रोड कई अरसे से इल्तवा का शिकार है, जिसके ऊपर लोग जो हैं यहाँ के बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नजीम साकिर के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में हुकूमत के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। तरक्याती मंसूबों में ताखीर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अहमदपुर शर्किया हुकूमत के तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। 1 साल गुजरने में नहीं आ रहे। शादमान कॉलोनी में सेवरेज मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं कि शादमान कॉलोनी में 3 माह पहले सड़क की खुदाई की गई थी। 13 फुट गहरे गड्ढे खोद कर ठेकेदार रफू चक्कर हो गया। पब्लिक हेल्थ के मंसूबे शहर भर में शुरू किए 1 साल बीत गया है। मेगा सेवरेज प्लान के अलावा शादमान कॉलोनी, कलंदर कॉलोनी, चाचा बस्ती चौक और चौक शिकारी के मंसूबे भी नामुकम्मल है। आखिर से काम किया जा रहा है, गैर मियारी काम किया जा रहा है और दुख सुख इंसान के साथ ही है। खुदा न खासा एम्बुलेंस की किसी को जरूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही स्लो तरीके से काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो है अपना मटेरियल बहुत नाकिस है। पक्के से पुजान ट्रेन डू बंदे बहुत तंगी थी खड़ी है, क्या मसला है?
खुदी हुई सड़कों पर मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। किसी मरीज के लिए एम्बुलेंस तक गली में लाना नामुमकिन हो गया है। बड़े बड़े गहरे गड्ढों की वजह से किसी भी वक्त कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरियों ने आला हुकाम से मंसूबे मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, अहमदपुर, शर्किया। रहीम यार खान में अवाम के लिए खुशखबरी, 37 मिलियन की लागत से शेख ज़ैद हस्पताल रोड से जमजम ग्राउंड तक सड़क तामीर होगी। रहीम यार खान में अवामी नुमाइंदे तरक्याती काम करवाने के लिए सरगर्म हो गए। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA चौधरी आसिम मजीद हल्के में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने पहुंचे तो इलाका मकीनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने कहा कि 37 मिलियन की लागत से शेख ज़ैद हॉस्पिटल रोड से जमजम ग्राउंड तक पुख्ता रोड तामीर की जाएगी। ये बहुत सारे इलाकों को टच करती है रोड, तो ये बड़ी देर से टूट फूट का शिकार थी। आज चौरियासफ साहब की काविशों से मैंने कोशिश की, उस्मान बुज़दाद साहब ने मेहरबानी की, इस शहर पे एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, तो माशाल्लाह आज ये रोड कारपेट बनने जा रही है। MPA चौधरी आसिम मजीद ने कहा कि हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। अवाम के मसाइल हल करना PTI के मंशूर का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर आला पंजाब ने मेरी और चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच साहब की रिक्वेस्ट पर हमें अरबों रुपए के फंड जारी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शहर के वस्त में रोड थी ये 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और 10 माह इसकी मुद्दत है। इंशाल्लाह 10 माह में इस इलाके का दरीना मसला हल हो जाएगा। चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने कहा कि 10 माह में सड़क की तामीर का काम मुकम्मल होगा, जिससे मकीनों का मियार जिंदगी बुलंद होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जल्द दौरा मुतवक्के है। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत छुट्टी के रोज़ हंगामी इजलास हुआ है। वज़ीर आला डेरा गाजी खान, तौंसा और कोह सुलेमान का तफसीली दौरा करेंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जल्द डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे, जहां वो 3 दिन और 2 रातें गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मुशीर सेहत हनीफ पताफी ने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने गदाई रोड, शाह सिकंदर रोड, मोबाइल मार्केट का दौरा किया। उन्होंने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ 7 रोड हैं और हाईवे के पास भी 7 रोड हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट है। हाईवे के पास जो रोड है, एक जो रोड जा रहा है पुल डाट से गदाई फाटक तक 40 करोड़ रुपए का एक रोड है। इसी तरह 2 एक मेगा प्रोजेक्ट हमने मंजूर करवाए हैं अभी, शाह सिकंदर रोड से रेलवे पुली तक और लारी अड्डा के इर्द गिर्द जितने भी रोड हैं कारपेट किए जाएंगे। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे सरवर कॉलोनी में, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर का ये रोड भी बन रहा है और साथ समान का कैनाल के ऊपर पुल भी बनाया जा रहा है। हम शुक्रगुजार है वज़ीर आला पंजाब के, जिनकी खसूसी मेहरबानी से डेरा गाजी खां के इस वक्त जितने भी रोड हैं तमाम रोड को कारपेट किया जा रहा है और उनको कुशादा भी किया जा रहा है। जी कब तक सर ये काम मुकम्मल कर लीजिए? जी इंशाल्लाह जून से पहले हमने इनको टारगेट दिया है कि जून तक ये जितनी भी हमारी स्कीमें हैं इनको 100% फंडेड कर दिया गया है और इंशाल्लाह जून से पहले इनकी हम इफ्ताह करेंगे। मुल्तान में वजारत इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर और सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ज़ेर-ए-तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी काउंसिल की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया गया। इसनाद भी तकसीम की गई। मुल्तान में वजारत इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर और सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ज़ेर-ए-तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी काउंसिल के यूनियन काउंसिल और ज़िला काउंसिल के मेंबरान की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर आमिर डोगर और मलिक अदनान डोगर की वालिदा की रस्म चहलम मुल्तान में अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर की वालिदा की रस्म चहलम मुल्तान में अदा। रस्म चहलम के इज्तिमा से खिताब करते हुए सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा फारूक खान सईदी का कहना था कि अल्लाह उनके करीब होता है जो नबी मेहरबान के करीब हों। अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल करता है। दुआ इबादत का मगज है, दुआ का सवाब पहुँचता है, नबी के वसीला से दुआ कबूल होती है। इस पूरे अर्ज पर, इस भरी पूरी जमीन पर
इस नीलू आसमान के नीचे हर आदमी ये कहता है मैं अल्लाह के करीब हूं। अब अल्लाह से पूछा जाए कि बारे इलाहा तू किनके करीब है, वो फरमाता है साला का ऐ आमिना के लाल जो तेरे दर के भिखारी है, मैं उनके करीब। मुमताज नातखा अल-हुजाज शहबाज कमर फरीदी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया अकीदत पेश किया। आमिर डोगर, मलिक अदनान डोगर, मलिक उस्मान डोगर की वालिदा माजिदा की शरकत को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। रस्म चेहलम में मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी, नदीम कुरैशी, MPA महिंदर पाल सिंह, साबिक चेयरमैन MDA मियां जमील अहमद, साबिक सूबाई वजीर मोइन रियाज कुरैशी, चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, रहनुमा जमात इस्लामी सज्जाद वैंस, साबिक डिप्टी मेयर सईद अंसारी, रहनुमा पीपल्स पार्टी ख्वाजा रिजवान आलम, साबिक UC चेयरमैन राव मजरुल इस्लाम, साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच, चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर, रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर शाह, सजाद सियाल, शहबाज कुरैशी, चेयरमैन फुटबॉल एसोसिएशन जावेद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर। साउथ पंजाब आर्ट सोसाइटी की अच्छी काविश मुल्तान के प्राइवेट कॉलेज में कुल पाकिस्तान से ज़बानी तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। A society without discrimination, then we should not discriminate anyone. If we want peace in our society, then we should play our role in our violence removal. नौजवानों की तकरीरी स्किल्स को उभारने के लिए साउथ पंजाब आर्ट सोसाइटी मुतहरिक। सोसाइटी ने प्राइवेट कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ जामियात के 80 मुकर्ररीन ने हिस्सा लिया। लाल कोट में मलबूस उस्तुखा मगरिब के गुंगे पैगंबर कार्ल मार्क्स के तर्जुमानों के जिनकी कुल बहस जर और जन से आगे नहीं जाती, तो ऐसे में हयात की रमज़े आखिरी को समझे कौन। तकरीर अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी जबान में की गई। कफेल राना, शुजा अहमद और रुमैसा ने तकरीरी मुकाबलों में जज के फराइज अदा किए। तकरीरी मुकाबले 2 रोज तक जारी रहेंगे। हमारे जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर बोलने की एक सकत पैदा होगी, वो अपना मैसेज आसानी से डिलीवर कर सकेगा, और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक मखसूस तबका है वो टूट जाएगा। अंदर से जिसका गुदाज है हर किसी को बोलना आएगा, हर कोई बोलना सीख जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है मुल्तान को लिटरेचर के हवाले से, एक डिबेट के हवाले से मुल्तान की इमेज को बिल्ड करने के लिए, जो कि साउथ पंजाब जो है इस मामले में ज़्यादा आगे नज़र आता है, तो अपर पंजाब ज़्यादा नज़र आता है, तो हमने साउथ पंजाब को ऊपर लेकर जाने के लिए जो है मुल्तान के लिए यहाँ पर एक मुकाबले का इनेकाद करवाया, और कल हम मुशायरे का भी इनेकाद करवाएंगे। साउथ पंजाब आर्ट सोसाइटी के सदर का कहना था कि तकरीरी मुकाबलों में नई नस्ल में अच्छा बोलने की स्किल्स पैदा होती हैं और इससे नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।